کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آج کا انشور الحمدللہ بہت اچھا رہا. پہلے اس سے بریلویوں کی خباثت ہمیں معلوم تھی، مگر آج مزید اضافہ ہوا اس میں. جب یہ چلے گئے تھے نا جیل میں، تو پھر وہ جب فتوے کے لیے کہا تو وہ پھر پہلا فتویٰ میں نے دیا تھا مدرسہ عثمانیہ صدر قرآن راولپنڈی سے. ان کے حق میں، ان کے اگینسٹ حق میں. جیسے اب جنہیں صاحب سے سنتے ہیں سارا، یہ تو بالکل جھوٹا اور غلط اپنا بغض نکالا ہے. جب ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی تو انہوں نے اپنا بغض نکالا ہے، اور اس میں اور کچھ نہیں. جس طرح کہ دادا صاحب کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جیلم کا راستے دروازے کھول رہے ہیں ماشاءاللہ. دادا صاحب سے لوگ ادھر آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک مزید ان کو ہمت اور حوصلہ دے، کیونکہ جن لوگوں کے گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے ان لوگوں نے تو ہاتھ نہیں ڈالا، توڑ بھی چھوڑا ہے. الحمدللہ. اور جو بات انہوں نے کی ہے نا، مطلب کہ فرقوں کے حوالے سے، تو ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ فرقہ ہونا نہیں چاہیے. دو جو بڑے اہم ایشوز ہیں ان پر یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ بابا پرستی جو ہے اس کو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے، اور دوسرے اہل بیت پر ان کا جو کام ہے. انجینئر گمراہ آدمی نہیں، علماء تو کہتے تھے یہ گمراہ ہے. نہیں، اصل میں ہم لوگ گمراہ تھے علماء کے چکر میں، لیکن جب سے انجینئر صاحب سے ملے ہیں تو تب پتہ چلا کہ واقعی ہمیں کچھ سمجھ آئے ایک چیز کا کہ یار ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بات سنی سنائی بات پہ عمل کیا جائے. آگے سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اپ گریڈ ہو گیا. اپ گریڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وہ جو مطلب کہ مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم نے اندر کروا کے ہم جیت جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ بڑھ گئے ہیں. خیر، میں اس کے علاوہ آپ لوگوں سب کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کریں ماشاءاللہ یہ بہت ایک اعلیٰ کام ہے. اللہ قبول فرمائے. کہتے ہیں مولوی، کہتے ہیں علماء، کہتے ہیں بڑی تلخ باتیں کرتے، لگتا ہے کوئی سی باتیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ان لوگوں کو جو ہیں دین سے پھرے ہوئے ہیں ان کے لیے تو سخت رویہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ جیون جد تک منحصر ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ قرآن و سنت سے نکلنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکھیں، شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک سیشن ختم ہو چکا ہے. ہم جو حال میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں، تو آئیے. کیا نام بھیا؟ امجد علی. امجد، کہاں سے آئے ہو؟ جی بیسکلی ہم سوات سے، اور یہاں محمدی چوک میں رہتے ہیں. محمدی چوک میں ریلیٹیوز ہیں کوئی؟ جی اچھا، سوات سے آئے ہو. خیریت ہے؟ اتنا لمبا سفر کیا؟ جی بس انجینئر صاحب کے ساتھ ہے. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ یہ تو بہت عرصے سے جانتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے، 3-4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس، بتاؤ نا. آج کا انشور الحمدللہ بہت اچھا رہا. پہلے اس سے بریلویوں کی خباثت ہمیں معلوم تھی، مگر آج مزید اضافہ ہوا اس میں. پہلے کیا بریلوی فرقے سے تعلق تھا آپ کا؟ پہلے بریلوی، پہلے دیوبندی تھے. دیوبندی تھے. ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ دیوبند جد تک منحصر ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس سے نکلنا چاہیے. آج کا سیشن کیسا رہا؟ اچھا رہا الحمدللہ. آج تو بڑا تگڑا اور بڑا تڑکے والا سیشن تھا. بہت اچھا رہا. نعرے بھی جی بڑے بڑے لگے ہیں. جی چلے، ملاقات ہوئی آگے انجینئر صاحب سے؟ نہیں، اب ملاقات ہو نہیں انشاءاللہ. چلے مل کے آئیں. بہت شکریہ. آئیں سر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شوکت ندیم. محمد شوکت صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں راولپنڈی اسلام آباد سے. خیر خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. سفر ٹھیک رہا؟ جی الحمدللہ. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ انجینئر صاحب کو کافی عرصے سے، بس یہ پروگرام وغیرہ سنتا رہا ہوں، تو آج ساتھیوں نے کہا کہ آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو میں نے وہ اس دوران میں نا جب یہ چلے گئے تھے نا جیل میں، تو پھر وہ جب فتوے کے لیے کہا تو وہ پھر پہلا فتویٰ میں نے دیا تھا مدرسہ عثمانیہ صدر قرآن راولپنڈی سے. ان کے حق میں، ان کے اگینسٹ حق میں. جی. اچھا، آپ کا کون سا مسلک ہے؟ میرا، میں صرف اور صرف مسلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے، رکن میں جماعت اسلامی. زبردست. ویسے جماعت اسلامی کے جو بڑے میر ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو خاموش رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس وجہ سے خاموش رہتے ہیں نا کہ وہ کسی بھی فرقے کا حصہ نہیں بننا نہ بنے، لیکن ایک مسلمان کے اوپر اگر بغیر یہ ان کا ایشو نہیں ہوتا. اچھا امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل اٹھاتے، یہ تو نجی معاملہ تھا، اس میں تو کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی.
ज़रूरत नहीं थी? जरूरत ऐसा आपको नहीं थी, लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने की, उनकी मदद, वो हक पर थे, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। आवाज़ उठानी चाहिए थी। जी नहीं, मेरे अर्ज करने का मतलब है कि एक अलहदा इशू बन जाता है हाँ, ना, हाँ। जिस इशू को वो ख़त्म करने के लिए आए। यानी जमात के अंदर ना फ़िरका वारियत नहीं मुतदी मतवा खुद मिर्ज़ा कब से जानते हैं आप इनको? मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा हो गया जब से ये आए हुए हैं ना इस मीडिया पर, तो उस पर से ध्यान चलो, तो आपका माशाल्लाह एहसान भी है जी, आपने फतवा दिया, जी, आपने जी, हक में जी, आवाज़ जी, उठाई। जी। और आज का सेशन कैसा रहा ये तो बताएं। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं मौलवी कहते हैं, उलमा कहते हैं, बड़ी तल्ख बातें करते हैं, लगता है कोई सी बातें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन लोगों को जो हैं दीन से फिरे हुए हैं, इनके लिए तो सख्त रवैया इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई ज़रूरी हाँ, है। जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही। हक जो है ना वो वाज़ेह होना चाहिए। जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, यानी हक जो है ना वो आके रहता है और बातिल भागने वाला है। इस पर कारी ज़रब लगाना मोमिन की शान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन? आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? असद दोस्त मोहम्मद। असद दोस्त मोहम्मद, कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से शौक साहब का दामाद हूँ। माशाल्लाह जी, वेलकम आपको जेएलएम अकेडमी में। जी, बहुत कब से शुक्रिया। जानते हैं आप इंजीनियर साहब को? तकरीबन पिछले कोई 9-10 साल से इनके साथ हम मुंसलिक हैं और जानते भी। मैं पहले भी आया था 2019 में, एक विजिट हमने किया हुआ है इनके साथ। सवाल जवाब भी थे कुछ। भाईजान अपने मोबाइल का कैमरा आज दूसरा ऑन विजिट। रखें, दूसरा विजिट। कैसा रहा आज का? फ्लैश लाइट ऑफ कर अल्हम्दुलिल्लाह दें। बहुत अच्छा। ठीक है, फ्लैश को बस बंद ये कर था दें, कि फ्लैश की जरूरत जब नहीं है, लाइट ये अंदर जेल से काफी वापस आए हैं तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी थी, तो हमने कहा कि Simple चले हम mode on रखें बस कैमरे ये को। समझें कि उस खुशी में हमने विज़िट किए। बाकी इनकी यही बातें सारी है तो बहुत अच्छी तरीके से हम ऑलरेडी जानते हैं, सुनते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि कम से कम दो जो बड़े अहम इश्यूज़ हैं उन पर ये बात कर रहे हैं। एक तो ये बाबा परस्ती जो है उसको इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे, और दूसरे अहले बैत पर इनका जो काम है। तो मैं इनके लिए एक मशवरा भी है, वो मशवरा ये है कि इनको अब अपनी जो है लेगेसी छोड़नी चाहिए और बाकायदा अपने जो है स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इनके होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि इनके बाद ये काम जो है ना वो इस तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये इनके लिए मशवरा भी है कि अब आप इस चीज़ को छोड़ दें कि मेरा चंदा बॉक्स नहीं है तो ठीक है, चंदा बुक ना रखें, लेकिन ये है कि आपको अपना एक प्रॉपर जो है ना वो एजुकेशनल सिस्टम, चूँकि इस तरह से ये लोगों को ये मोटिवेट तो कर रहे हैं, मुतहर्रिक कर रहे हैं, लेकिन एजुकेट नहीं कर रहे हैं। एजुकेट तो एक सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उसके तहत। तो ये इनको रिक्वेस्ट है कि इस तरफ चलो, आप वो आएं। सुनते हैं, वो सुन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? हसामुद्दीन हसामुद्दीन जी। माशाल्लाह जी। हसाम भाई किधर से? बहावलपुर से। वेलकम जी। बड़ा लंबा सफर। जी, जी। ठीक रहे? थकावट तो होगी। हाँ बस थोड़ा। हाँ, कितने बंदे आए हैं? मैं अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? जी जी। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं इंजीनियर साहब को तकरीबन 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ। सही है। क्या लगता है, क्या इनकी बातें हैं जो अट्रैक्ट किया आपको और आप आए? उलमा तो आपको पता भी, तो पीछे फतवे लग गए। जी जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब हाफिज़ अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह के शागिर्दों में से हैं, तो अकीदा तौहीद और ख़ुद बुक रीडिंग ये सारा एक कल्चर चल रहा था। बट मैंने ड्यूरिंग अपनी ग्रेजुएशन भी या स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हुए एक चीज़ देखी कि जब हम अपने क्लास फेलोज़ को या किसी को अकीदा तौहीद से रोशनास करवाने की कोशिश करते थे या उस टॉपिक के ऊपर बात करते थे, तो उस बात को, उस टॉपिक को एक उस तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम उसको एक बैकवर्ड चीज़ समझते थे। वो समझते थे कि टिपिकल ये पता नहीं वहाबियात से या उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। बट इंजीनियर साहब ने जिस तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इस्लाम का जो सबसे पहली इकाई है ना वो अकीदा तौहीद है, बेशक वो उस चीज़ के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले इससे बेहतर कभी भी काम हुआ था। और एक यंग जनरेशन में इसके ऊपर काम हुआ था, क्योंकि हम यंग जनरेशन ने बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज समझा हुआ था। हमने जो एक वो बाउंड्री डरा थी ना कि ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दसा है, ये रसालत है, ये चीज़ के ऊपर पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया, डॉक्टर इसरार साहब ने, बाकियों ने भी। लेकिन जिस तरीके से एक जो नौजवानों की लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि बीइंग यूनिवर्सिटी में जिस तरह इंजीनियर साहब ग्रेजुएट हैं या हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह की टॉप डिस्कशन में या इसी लैंग्वेज में हो रही होती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक किसी को, मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लाना एक बहुत बड़ा बात है। और इसी तरह एक बंदा जो इस्लाम के अंदर है, इस्लाम के अंदर होते हुए वो अकीदा तौहीद से रोशनास नहीं है, तो उसको ये मेरे ख्याल में एक उससे बड़ी एफर्ट्स है।
ایک بندہ جو اسلام کے اندر تو آ گیا لیکن وہ عقیدہ توحید سے اس طریقے سے نہیں روشناس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے. یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے بالکل ہمارے یہاں بہت نارملائز تھا. اس میں ہم نے رسالت کو یا عقیدہ توحید کو ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا تھا. اسی طرح بابا ازم میں رسالت کے اندر بھی شرک اور اسی طرح عقیدہ توحید میں. تو یہ الحمدللہ انجینئر صاحب نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزائے خیر دے. 295C لگ گئی پچھلے دنوں اور ایک ماحول بن گیا، فتوے بھی آ گئے، مقدمے بھی ہو گئے، تو کیا لگ رہا تھا اس وقت، کیا ماحول بن گیا تھا کہ کیا ہوگا اب؟ اس میں میں جنرلی کہوں گا کہ جس طرح ایک ینگ جنریشن میں چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر ہوپ لیسنس کے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر یا اس طریقے سے چیزیں نہیں چل رہی. اور یہ ایک چیز جو میرا پرسنل اوپینین ہے کہ جب بھی آپ ایک حق کے اوپر بات کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو ریڈلز یا وہ چیزیں آتی ہی آتی ہیں. تو اٹس پارٹ، یہ چلتا ہی چلتا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ ایک اتنے اکلٹ معاشرے میں عقیدہ حق کے اوپر بات کریں گے، عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں گے، جہاں پہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی اتنی اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں یہ ڈیفینیٹلی تھی. بٹ الحمدللہ کہ وہ چیزیں الحمدللہ جی واپس آ گئے انجینئر صاحب، اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے، دوبارہ لوگوں سے اپنا وہی سلسلہ شروع کر دیا. تو کیا لگتا ہے کوئی فرق آیا انجینئر صاحب کے اندر اس طرح کے اوچھے ہڑکندوں؟ میں پہلے وہ لیکچر وغیرہ سنتا تھا، فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا بھی، لیکچر بھی اٹینڈ کیا، اور اس میں وہ جتنی بھی ایک ڈسکشنز ہوئیں خاص کر کے مجھے بہت اچھا لگا کہ آج میں آیا ہوں. اور وہ جو میرا ایک وہ فیوریٹ پوائنٹ ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر بات ہونی چاہیے، رسالت کے اوپر بات ہونی چاہیے، کہ رسالت کے اندر جس طریقے سے ہم نے فقہات کو یا ان چیزوں کو انڈلج کر دیا ہے، تو وہ ایک بہت ہی رہا وہ سیم اسی طرح میں نے اس کو پایا، بلکہ بہت ایک زیادہ جذبے کے ساتھ پایا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ استقامت. آمین آمین. چلو جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ. ہاں جی السلام علیکم بھیا. وعلیکم. کیا نام ہے بھائی؟ محمد خالد. محمد خالد. خالد بھائی کہاں سے ہیں؟ فیصل آباد. ماشاء اللہ جی، ویلکم آپ کو جیلم اکیڈمی میں. پہلے تو بتایا سفر ٹھیک رہا؟ الحمدللہ. کتنے دوست لے کے آئے ہیں؟ 5 ہیں. الحمدللہ. آپ لے کے آنے والے میں سے ہیں یا آپ آنے والے میں سے ہیں؟ آنے والے میں سے. سر جی اسٹیج جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ چار سے تعارف ہوا؟ جو بندے باہر ہیں وہ پیچھے چلے جائیں. 4 سال سے سن رہے ہیں. صرف 4 سال سے. عثمان بھائی ایک لائن وزٹ پہلے؟ ہاں جی وزٹ پہلے. بہت دل میں چاہ تھی ان سے ملنے کی، دیکھنے کی، لیکن بس کچھ مصروفیات ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو ایک دوست ملا، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے، تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو پھر بدقسمتی سے ان کو جیل ہوگی، تو ہمارے جو دن ہے وہ بڑی مشکل سے کٹے. ہم اللہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے واپس. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، واپس آ گئے. تو پچھلے ویک ہم نے آنا تھا لیکن رش کی وجہ سے انجینئر صاحب نے منع کیا تھا کہ اتنے لوگوں کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے جمع کثیر ہوتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ ایک ویک ڈیلے کر کے، تو پھر کل رات 12 بجے ہم نکلے. تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ آئے ہیں اکیڈمی میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. جو ہم سنتے تھے نا کافی عرصے سے کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں، تو جو دیکھا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا سن کے. اور جو بات انہوں نے کی ہے نا مطلب کہ فرقوں کے حوالے سے، تو ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ فرقہ ہونا نہیں چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہی ہونا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ جو 295C لگانے والے تھے اور وہ جو سارے پروپیگنڈا کرنے والے تھے، ایک طرح سے تو ان کے سر میں گولی مار دی نا. اتنا بڑا الزام، چھوٹا الزام تو نہیں ہے. درخت پہ لگاؤ وہ بھی سوکھ جاتا ہے. بالکل. کیا فیوچر ہے گیا ایسے علماء کا جو اس فتوے میں ساتھ تھے، انجینئر کے اگینسٹ تھے؟ کیا رہ گیا ان کا فیوچر؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بہت بے آواز ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ انسان اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ جی، بالکل بنائے گا انشاءاللہ. چلے جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ. سر وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ محمد محسن. محمد محسن. محسن بھائی کدھر سے ہیں؟ اٹک سے. اٹک سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. پہلے تو بتائیں سفر ٹھیک رہا؟ میں رات کو ہی آ گیا تھا، ایک دوست کی شادی تھی اور ادھر رات کو رک گیا. ابھی پھر کلاس کے بعد انشاءاللہ واپسی. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ کافی عرصہ ہو گیا، 4-5-6 سال تو ہو ہی گئے. وزٹ پہلے یا آگے بھی آئے ہیں؟ وزٹ میرا پہلا ہے. وزٹ پہلے. اتنی دیر کی ہوگی؟ آخری 3 سال تو میں آسٹریلیا میں تھا. ٹھیک ہے. ابھی 10 دن ہوئے پہلے آیا ہوں چھٹی. تو اس سے پہلے اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، آخری 3 سالوں میں زیادہ رجحان ہوا ہے میرا انجینئر صاحب کی طرف. کیا وجہ تھی انجینئر صاحب کی طرف جب آپ اٹریکٹ ہوئے؟ کیا لگا؟ انجینئر صاحب کے خلاف تو علماء تو بہت زیادہ تھے. کچھ بہت زیادہ ڈفرینس ہمارے لیے نہیں تھا بلکہ ہمارے پورے گھر والوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کچھ ایسا کسی ایسے فرقے والے گھرانے سے تعلق رکھتے نہیں تھے جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں.
जमात इस्लामी से हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है। हमारा सबके लिए सॉफ्ट कार्नर है। हम पहले से ही सबको मुसलमान समझते हैं, पहले ही सबके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, सबको चंदे देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था, बचपन से लेकर अब तक के जितने भी वो अनअटेंडेड जो सवालात हमारे जहन में, जो किसी भी बच्चे के दिल में होते हैं कि जो चीज़ें अलाइन नहीं कर रही होती, दिल में कुछ और होता है और वो आंखों से कुछ और देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें अलाइन नहीं कर रही होती, तो वो चीज़ें अनअटेंडेड छोड़ दी जाती हैं। वो मेरे दिल में भी एक हर इंसान की तरह वैसे ही थी। तो उन तमाम सवालात के जवाबात मुझे मिले इंजीनियर साहब की तरफ से, अल्लाह पाक खुश रखे उनको। और आप ये समझ लें दूसरे अल्फाज में कि जो भी हमारे दिल में था उसकी नुमाइंदगी की है इंजीनियर साहब ने। ये तमाम चीज़ें पहले से हमारे दिल में थी, जो चीज़ें सरेआम लोगों में फैलाई जाती थी, हमारा दिल उसे तस्लीम नहीं करता था, लेकिन बस हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था। तो हमें इंजीनियर साहब की सूरत में एक नुमाइंदा मिल गया, तो अल्लाह पाक भला करे इंजीनियर साहब का। यूथ को नुमाइंदा मिल गया, यूथ जुड़ भी गई इंजीनियर साहब से, लेकिन यूथ को तो इनका नुमाइंदा तो अभी ये छिन गया था तकरीबन। अब जब आपने बताया 3 साल पहले आप ऑस्ट्रेलिया में थे, तो क्या बना उस वक्त, क्या सोच रहे थे जब ये 295C लगी और अंदर हो गए? मैं पिछले 2 साल से इंतज़ार में था कि जब भी पाकिस्तान जाऊँगा तो इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा। नहीं, पहले लगता था कि ये तो बाहर आएंगे भी कि नहीं आएंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, पहले तो मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह ज़रूर बाहर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया तो आखिर में जाके मैं थोड़ा सा मायूस हो गया कि मेरी छुट्टी का टाइम करीब आ रहा था। तो मैंने कहा शायद किस्मत में मुलाकात हो तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वो मेरे आने से 1 हफ़्ता पहले इंजीनियर साहब बाहर आ गए। यकीन तो मुझे था इंशाल्लाह बाहर ज़रूर आएंगे, एक दिल में तसल्ली थी, वो बस मुझे नहीं पता क्यों थी, ना ही मुझे 295C के बारे में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कोई भी बाहर नहीं आता, लेकिन इनके हवाले से मुझे ये था क्योंकि बिल्कुल ये एक फैब्रिकेटेड चीज़ इन पर डाली गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बाहर आ गए और हमारे दरमियान। कैसा आज का एक्सपीरियंस, आज आके मिल रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। सबका जोश वलवला आपको काम तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही है। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक मज़ीद इनको हिम्मत और हौसला दे, क्योंकि जिन लोगों के गिरबान में उन्होंने हाथ डाला है उन लोगों ने तो हाथ नहीं डाला, तोड़ भी छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भैया। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भैया? मेरा नाम सैफ। सैफ अली। सैफ अली भाई, कहाँ से हो? मैं लाहौर गढ़ी शो। लाहौर गढ़ी शो, लाहौर, ये माशाल्लाह, वेलकम जी लाहौर वालों। सफ़र ठीक रहा सैफ भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दोस्त आए हैं? हम 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त आए हैं। उसको आप लेके आए हैं, दोनों सुनते हैं या क्या सीन है? दोनों ही सुनते हैं हम। दोनों ही सुनते हैं। दोनों का एक प्लान बना है, इकट्ठे यहाँ पे आ गए। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? तकरीबन हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से अकेडमी पहला विजिट है? हाँ जी, पहली दफ़ा आए। तो जब 295C लगी, इंजीनियर साहब अंदर चले गए, तो दिल में आया होगा कि यार मुझे जाना चाहिए था मिलने? वो आए तो उसी वजह से ही आए। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वापस आ गए। ऐसे ही बस अल्लाह की राह पे जब इंसान चलता है तो मुश्किलें तो आती है ना। अल्लाह बेहतर करने वाला है। अच्छा, क्या वजह थी इंजीनियर साहब को सुनने की? लाहौर में तो दाता साहब के मानने वाले, दाता की नगरी कहने वाले लोग, मैं वैसे एक बात करूँ तो वो एक लाहौरिया क्यों बिटर गया इंजीनियर साहब की तरफ? इनको तो लोग कहते थे ये तो से ना जेल में खटकती थी कि ये काम सही नहीं है। दरबारा पर हालांकि मैं भी दरबारा वगैरह पे जाता, लेकिन शुरू से मैं राज़ी नहीं था इन चीज़ों से कि नहीं यार ये गलत हो रहा है निज़ाम। बस मुझे कहते हैं ना, वो मैं किसी आड़ में था कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले तो मैं बस हक के राह पे चलूँ। वही बस चक्कर में शुक्र है मेरे अल्लाह का कि हमें अली भाई के होने से हमें बड़ा दीनी इल्म मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से हम जिस पे चले हमें पता लगा कि ये दुनिया में क्या करना है, किस मकसद के लिए हम आए हैं। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा निज़ाम। 295C कटी थी जी, तो क्या सोच रहा था क्या होगा अब? बस कुछ नहीं सोच रहा है, थोड़ा सा बस हुकूमत की तरफ परेशान था। आपको पता है जैसी ये हुकूमत है, हक आपको पता है इंसाफ हक इंसान को नहीं मिलता। बाकी ये उम्मीद थी कि अल्लाह की राह पे अली भाई चल रहे थे तो इंसाफ तो इनको मिलना था। टाइम तो थोड़ा सा लगता है, तो कामयाबी इंशाल्लाह। तो जो लगाने वाले थे 295C फतवे देने वाले थे वो किधर हैं? बस वो फिरके वाले लोग हैं। आजकल है किधर है? बस वो खुड्डों में हो गए, अपने बिलों में चले गए। इंजीनियर साहब तो अपनी सीट पे बैठ गए और उसी तरह फिर ललकार रहे हैं। बस ऐसी है ना, पहले पीछे पीठ पे जो सवाल कर लेते हैं,
जो आपकी हिम्मत नहीं होती साइड पे हो जाते हैं। फिरका वारियत है, अल्लाह पाक की खुदा है। कैसा रहा जी आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, फिलहाल नींद बहुत आ रही थी क्योंकि हम निकले में रात 10 बजे के निकले थे, रात में गाड़ी भी ख़राब हो गई, सोए भी नहीं। यहाँ से बाहर से नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी सोए नहीं, आंखें बंद हो गई थी। बाकी बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर चक्कर लगाएंगे। पहली दफ़ा देखा, बड़ा अच्छा लगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम भाई कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से आया हूँ और मेरा तलक हाफजाबाद से है। यानी पीछे से हाफजाबाद से? हाफजाबाद शहर से? हाफजाबाद शहर से। वेलकम जी, जी आया हूँ जनाब। कैसा रहा जी सफ़र? पहले तो ये माशाल्लाह अच्छा सफ़र है, बेहतरीन सफ़र। रावलपिंडी जॉब शॉप करते हैं? हाँ, रावलपिंडी में जॉब साहब करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को तकरीबन 8-10 साल से जानता हूँ। तारुफ है इनका? तारुफ है इनका। कैसा तारुफ था? नेगेटिव था पॉजिटिव था? नेगेटिव, तारुफ तो नेगेटिव ही होता, वो आपको पता ही है। हाँ। तो खैर मैं इसके अलावा आप लोगों को सबको, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग जो काम करें माशाल्लाह ये बहुत एक आला काम है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं इंजीनियर साहब को सुनने से पहले ही ये फिरका वारी से निकल चुका था, तंग था, लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं हमें मिल रहा था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म मिला कि इससे देख अब हमारी दिन ब दिन इस्लाह बेहतर से बेहतरी आ रही है। और मैं अभी तक देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने इनकी वो काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि कोई चीज़ इनकी ऐसी मैं गलत देखूँ, कोई पकड़ूँ, लेकिन आज तक मुझे इनकी कोई जो भी बात मैं इनकी पकड़ता हूँ, मैं और इनके साथ मज़ीद इनके साथ जुड़ता जा रहा हूँ। और मेरी सबसे ये गुजारिश है पूरे आलम इस्लाम से कि इनको सुनना चाहिए, और ये जो फ़िरका वारिद के लाने इससे हमें निकलना चाहिए। आपको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो आप काउंटर क्वेश्चन कर सके, पकड़ सकें, लेकिन पकड़ने वालों ने पकड़ लिया, 295C लगा दी, तो वो ठीक पकड़ा? सर वो 295C के बारे में सर ये तो बस इनकी बेवकूफ़ाना एक काम है इन मुर्गियों का, लगी समझ। जैसे अब इंजीनियर साहब से सुनते हैं सारा, ये तो बिल्कुल झूठा और गलत अपना बुग़्ज़ निकाला है। जब उनसे कोई बात नहीं हो सकी तो उन्होंने अपना बुग़्ज़ निकाला, और इसमें और कुछ नहीं है। उनके पास है, उनके पास इल्म ही नहीं है, उनके पास दीन ही नहीं है। अब जैसे माशाल्लाह ये इनको हम सुन रहे हैं, वो तो हर चीज़ें क्लियर कर दी इंजीनियर साहब ने, उनके पास है ही कुछ नहीं। उम्मीद थी बाहर आने की इंजीनियर साहब की? इतना बड़ा यार, इतना बड़ा इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो इंसान हक बयान कर रहा हो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये आए तो इनके पीछे अल्लाह ताला की ताईद है, बेशक ताईद और नुसरत थी, तभी ये इंजीनियर साहब बाहर आए हैं। और क्या लगता है जब वापस आए हैं, आज अपनी सीट पे बैठे हैं? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैं तो पहले दिन ही आने वाला था, लेकिन वो पहले दिन में नहीं आ सका, फिर मैंने कहा इसलिए आज मैं तीसरी सेशन में आया हूँ। मैं तो इनसे अभी मैं सिर्फ आ रहा कि तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं मैं जा रहा, अंदर सिर्फ मैंने मिलना और सलाम दुआ लेनी है और मुबारकबाद देनी है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अली खान। मेरा ताल्लुक़ तहसील जंड ज़िला अटक से है। अच्छा जी। और ये मेरे दोस्त अब्दुल अहद, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। अब्दुल अहद जी, लाहौर और अटक दोस्त हैं आप? जी, हम इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। 3rd ईयर के हम स्टूडेंट हैं। तो आज मेरे पास दोस्त ने आना था तो मैं इसके साथ एकेडमी में आया, तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एकेडमी में आने का, और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। पहले तो ये बताएं, जानते कब से इंजीनियर साहब को? कोई ख़ास हमारा तारुफ तो नहीं था इनके साथ। जब हम यहाँ जेलम में आए तो मेरे कज़न जो थे वो इनको जानते थे, तो उनसे सुना मैंने, तो मैं भी यहाँ पे आया। मैंने कहा चले जाते हैं एकेडमी में, हम भी सुनते हैं, जहाँ से हिदायत की रोशनी मिले, दीन की रोशनी मिले, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मुलाकात की इंजीनियर साहब से? जी की है। मिले? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह। सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह। आप भी साथ हैं? आ गया। क्या नाम है भैया आपका? सलमान। सलमान। किधर से आप? तो आप? मैं कराची से। कराची से हैं जी? ये सराय से दोस्त है, कज़न है, क्या है? जी कज़न ही है। कज़न है। खैर ये तो कैसे आना हुआ कराची से? बस ऐसे ही घूमने आए हुए थे, तो इन्होंने कहा चलो हम आज ये संडे का दिन है तो यहाँ चलते हैं, इंजीनियर साहब से मिलना। बताया तो पहले कि हमने इंजीनियर साहब से मिलना है। आपने? जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो फिर अभी आज मौका है। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को आप? तो मुलाकात हुई मेरी आज। आप कब से जानते हैं इंजीनियर साहब? 5 साल से। 5 साल से? जी। गुमराह आदमी मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया, तब से ही जानता हूँ इनको। जब से इंजीनियर गुमराह आदमी नहीं, उलमा तो कहते थे ये गुमराह है। नहीं, असल में हम लोग गुमराह थे उलमा के चक्कर में, लेकिन जब से इंजीनियर साहब से मिले हैं तो तब पता चला कि वाकई
हमें कुछ समझ आया कि चीज़ का कि यार ऐसा नहीं है कि किसी की बात सुनी सुनाई बात पे अमल किया जाए, नहीं, पहले तहकीकात करनी चाहिए, फिर उसके बाद अमल करना चाहिए। तो इंजीनियर साहब ने हमें यही सिखाया है। तो अब उसके बाद जब से हम लोग फिर बचे हुए इन चीज़ों से, उलमा से, तो अब अल्लाह का शुक्र है। तो इंजीनियर साहब कराची से आप आए हैं जी। कराची में इतने बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पापा जानी उधर होते हैं, मुफ्ती तकी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, क्या उनकी भी महफिलों में भी कभी गए हैं बैठे? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, तो क्या चीज़ है जो इधर खींच रही है इंजीनियर साहब के पास? बस इंजीनियर साहब ने एक ही बात हमें सिखाई है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे देश है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस चक्कर में हम लोग उनके पास पहुंच गए थे। अच्छा ये बताएं शाह जी, 295C लगी पिछले दिनों जी, अंदर हो गए, फतवे भी आ गए, क्या सोच रहे थे अब क्या होने जा रहा है? तो हमें तो अल्लाह पर यकीन था कि हमें पता था कि जो हुआ है इनके साथ, तो ये सारा ड्रामा किया गया है इनके साथ, और जिन्होंने किया हम उन्हें भी जानते हैं कि जिन्होंने ये किया है, हमें सब पता था इस चीज़ का कि हमें ये यकीन था कि ये वापस आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कानून तो इन्होंने पहले ही फतवा, हर किसी बंदे पे कोई भी बात करेगा या सवाल करेगा तो उस पर फतवा लग जाता था कि यार ये बंदा गुस्ताख है, ये बंदा गुस्ताख है, इसने ये बात कर दी, इसने ये कर दी। तो ये इंजीनियर साहब आए हैं तो अब इनके अंदर जाने से ये फ़ायदा भी हो गया कि फतवा लगना बंद हो जाएंगे। अब जो है ना सबको जो तहकीकात की जाएगी कि यार यहाँ ये कोई बात कर सकता है, कोई भी किसी भी इशू पे बात शुरू हो गई है। अभी देखें यूरोप पे इंजीनियर साहब का प्रोग्राम आया, वो जो इसी केस में जो 400 बच्चा है, 400 बच्चे इन्होंने जो बताए हैं कि जो इंजीनियर साहब ने आवाज़ उठाई है, नेशनल टीवी बैठ के, मेन मीडिया है, मेन मीडिया पाकिस्तान का फेस है। इस चीज़ से बड़ा फायदा हो गया कि बाकी बहुत पता चला हमें। आगे जरूरत नहीं थी बात करने की, इस तरह का टॉपिक को डिस्कस कर सकता था, नहीं कर सकते थे हम लोग, लेकिन आज हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कर सकते हैं और आगे भी जाके इंशाल्लाह करेंगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। उस्ताद मोहतरम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, सीट पे बैठ गए, मुलाकात भी होगी उनसे। तो क्या लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया उस्ताद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट की ऐसी कुछ कहानी नहीं है। ठीक है, वही जज्बा, वही जोश ही करता है, और ये अच्छा उस्ताद मोहतरम का जोश जज्बा वही है, पुराने वाला बिल्कुल वही है। कोई यानी उस्ताद हमारे बदलने वाले नहीं है, बदलने वाले उस्ताद वही है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? काशिफ अली। काशिफ अली? जी जी। काशिफ कहाँ से हो? मैं लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? ठोकर से, ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग। जी जी। पहली बात तो ये है कि जी वेलकम आपको जेलम अकेडमी में। जी बहुत शुक्रिया। अकेले आए हो? जी अकेला। अकेले आए हो। इंजीनियर साहब को कब से जानते हो? मैं माशाल्लाह से 4-5 साल से। पहला विजिट है जेलम का, अकेडमी का? 2 दफ़ा आया हूँ पहले। आगे भी आए हो? कैसे तारुफ हुआ था इंजीनियर साहब का? मेरे खाला के बेटे हैं मेरे, उन्होंने मेरा तारुफ करवाया था भाई का, तो उनके रेफर से मैं इधर आया था। ठीक हो गया। मुजम्मिल भाई हैं, तो वो लाहौर में अभी तक वो आए नहीं है खुद, तो उनके पास टाइम ही नहीं था, तो इसीलिए मैं आप आ गए हो? हाँ जी, मैं आ गया। अच्छा, इंजीनियर साहब के ऊपर 295C कट गई? जी जी जी। अंदर भी हो गए, तो क्या सोच रहा था काशिफ कि अब क्या होगा? बस जी अल्लाह का बहुत करम है, और ये अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा ही हुआ है, जिस तरह इंजीनियर साहब बाहर आए हैं, ठीक है, वरना मतलब कि हम तो दुआ ही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा तो दिल तो बैठ ही गया था हमारा, ठीक है, ऐसे तो बहुत बुरी कैफियत थी हमारी, ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, ठीक है। पहला जो इनकी रिहाई का जो पहला सेशन हुआ था 21 तारीख को, वो मेरा मिस हो गया था, बहुत रश था माशाल्लाह। हाँ ऐसे। तो वो आइडिया था मुझे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वो फिर मैं जो 28 को हुआ था। हाँ जी 28 को। तो 28 को इंशाल्लाह मैं आया था, तो अब आया हूँ। अच्छा, दूसरा? जी जी ठीक हो गया। 28 को भी आया हूँ, और ये इस वाले पे आ गया माशाल्लाह। क्यों पहले अभी पिछले सेशन से होके गए हो, तो अभी फिर? बस जी देखिए, मोहब्बत अली भाई से, ठीक है, माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, ये जो लगाने वाले थे 295C, जो फतवे निकालने वाले थे, क्या फ्यूचर है? क्या जो इंजीनियर साहब के खिलाफ बोला, हाँ जी, आज पहली बात है वो खुद किधर है, और उनका क्या फ्यूचर है आप दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी समुंदर की जग की तरह बैठ गए हम सब लोग, ठीक है, क्या कह सकते हैं, हंस ही सकते हैं उन पे, ठीक है, तो ये सोचते हैं सारे। उस्ताद मोहतरम को क्या लगता है, कोई चेंज आया उस्ताद मोहतरम का? कुछ सॉफ्टवेयर सुना अपडेट हो गया है? माशाल्लाह आगे से जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड हो गया? अपग्रेड हो गया, ठीक है, और वो जो मतलब कि मजाक उड़ा रहे थे कि हमने अंदर करवा के हम जीत जाएंगे, ठीक है, वो बढ़ गए हैं, और हमारे उस्ताद साहब माशाल्लाह से, जिस तरह दादा साहब का दरवाज़ा जो है ना वो बंद हो रहा है, ठीक है, और जेलम का रास्ते दरवाजे खोल रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है, दादा साहब से लोग इधर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात हुई उस्ताद मोहतरम से? जी होगी मेरी मुलाकात। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया? अफाक अली। अफाक अली? जी। किधर से? फैसलाबाद से। आप भी साथ है भैया? जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मुबीन हुसैन। मुबीन हुसैन, कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? जी। कितने भाई थे? हम आज जो आए? 5 भाई हैं। 5 भाई आए हैं जी।
अच्छा, कौन लेके आया पहले तो ये बताएं, किसका प्रोग्राम था? मिर्ज़ा साहब का प्रोग्राम था। इनका प्रोग्राम था? नहीं, आप हम में से? हाँ जी, हम इकट्ठे ही आए सारे अपने, सब सुनने वाले हाँ, हैं, सब सुनने वाले, सारे गुमराह जी सारे गुमराह। इन्वर्टेड कामाज में। हाँ हाँ, सारी बात है। बिल्कुल। अच्छा अफाक भाई, कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को आप? मैं 2019। 19। और आप? 2021। 2021। कैसा तारुफ था? पहले तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर सुना है, देखा है, समझा है, तो फिर पता चला है कि यही हकीकत है और यही हक है। आप अपना बताइए। मैं 2019 से तकरीबन, पहले शुरू में जब सुना है ना तो मैक्सिमम लोगों ने यही बताया कि गुमराह है, फलां है, ढमका है। मैंने कहा कि यार सुनते हैं, बात क्या है वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब सुनता है, तहकीक करता है, फिर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि भाई बात तो सच्ची है, बात ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुझान होता गया। फिर तकरीबन 2021 से तो फिर लगातार है ना जो सुनते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज भी रफ़ा दैन से शुरू की है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा फील हुआ। आज हम दूसरी दफ़ा हैं, 212 नंबर सेशन में पहले आए थे हम, तो अभी ये जो वाक़या हुआ तो फिर हमने कहा कि एक बार दोबारा आना था। जो वाक़या हुआ, जी जी, तब क्या लगता था कि क्या होने जा रहा है? बस परेशानी तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन यकीन था अल्लाह पे कि अल्लाह खैर करे। उम्मीद थी बिल्कुल। सच्चाई की जीत होती है। जो ये लोग थे फतवे लगाने वाले, जी। एकेडमी बंद कराने वाले, वो किधर है? वो पूरा मुल्क जानता है अभी किधर है। वो आजकल किधर है? वो आजकल उधर ही है जिधर इनको भेजा था। जिधर भेजा था। इंजीनियर साहब वापस आ गए, अपनी सीट पे बैठे, दोबारा लोगों से खिताब उसी तरह से सिलसिला शुरू हो गया। खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा। तो कोई रवैया भी बदल गया, सुना है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो जोश पहले से ज़्यादा आज नज़र आया। आज ज़्यादा जोश नज़र आया, ज़्यादा जोश। मुलाकात हो गई? जी मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया जी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।